Hello everyone. Welcome back to my channel Psycho Learning World. I, Mrs. Ankita Srivastav, is here with you all to discuss about the correlational research method of inquiry in psychology. So before I begin, हाँ जी, मैं आपसे बिल्कुल भी रिक्वेस्ट करना नहीं भूलूंगी कि आपको सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और पूरे एंड तक देखें सो दैट यू कैन गेट अ डीप नॉलेज अबाउट दिस मेथड एंड यू डोंट फेस एनी डिफ़िकल्टी व्हेन you have to apply this method in real life or practical life. So let's begin. Let's see through the content that we are going to cover today. आज हम कोरिलेशनल रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ेंगे एंड अबाउट दैट विल कम टू नो इट्स मीनिंग. व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोरिलेशन आर देयर? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड? सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च. Correlational research refers to a non-experimental research method which studies the relationship between two variables with the help of statistical analysis. Correlational research method non-experimental है, which means that you need not to conduct this research in a laboratory or a controlled situation. What does it studies? It studies the relationship. It studies the relationship. It is non-experimental, first point. Second, it studies the relationship. और relationship किसके बीच में study करता है? Between two variables with the help of, कैसे study करता है? With the help of statistical analysis. So, ये एक non-experimental method है. It studies relationship between two variables. And how does it studies that relationship? With the help of the statistical analysis. What is statistical analysis? Statistical analysis is the data collected for your research. तो हम key points देख लेते हैं. The relationship between two variables is determined for prediction purposes. Here in psychology, हम relationship से हमें क्या पता चलेगा? अगर हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का पता कर लेते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? साइकोलॉजी क्या करती है? उससे प्रिडिक्ट करती है एक इंडिविजुअल के बारे में, प्रिडिक्शंस लगाती है, अनुमान लगाती है एक इंडिविजुअल के बारे में कि वो अब आगे कैसे रिएक्ट कर सकता है या किस तरह का उसका बिहेवियर हो सकता है. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर डिटरमाइनिंग हिज बिहेवियर. नेक्स्ट इज नो वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड. Unlike experimental method where we studied that one of the variables is manipulated to see its impact on the other variable, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है. दो variables present ज़रूर है बट किसी को भी manipulate नहीं किया जाता, किसी को भी alter नहीं किया जाता. As it is that is studied. The strength and direction of relationship between two variables is determined by a number called correlation coefficient. Now, the relationship, so what we are talking about in the correlational research method, that we are establishing relationship between two variables, right? But how? It tells us about the strength, कि कितना strongly या फिर क्या direction है उस relationship का जो हमने establish किया है या हमें पता चला है दो variables के बारे में. उन दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और उसका क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव है या कोई डायरेक्शन नहीं है, आपस में दोनों वेरिएबल्स किस तरह से रिलेटेड हैं, ये हम पता करते हैं. और कैसे पता करते हैं? बाय अ नंबर कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसे अपनाया जाता है इस रिसर्च मेथड में. स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिसे अपना के रिजल्ट और वैल्यू निकाली जाती है अपने डेटा जो आपने कलेक्ट किया होता है, एंड इट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो लेट्स कम टू नो नाउ व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट. A correlation coefficient is a statistical measure that calculates the strength of a relationship between two variables, like we studied before in the slide above. That correlation coefficient is a statistical measure. ये एक statistical measure है. क्या कैलकुलेट करता है?
दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में हमें इससे अपना एक क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलती है. इट्स वैल्यू इज मेजर्ड बिटवीन -1 एंड +1. इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? इट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1. इसी के बीच में इसकी वैल्यू आती है. अभी हम आगे देखेंगे भी कि -1 से +1 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो माइनस में है तो उसका क्या मतलब है, प्लस में है तो क्या मतलब है, और अगर ज़ीरो पे है तो क्या मतलब है, या ज़ीरो के आसपास है तो व्हाट डज इट शो, व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इट रिप्रेजेंट्स. ऑलराइट, so this is all about the correlation coefficient, which is the statistical measure adopted for this research method. Next comes the types of correlational research. Like I was telling you, there are three types of correlational research methods that we receive from the value we get with the use of the statistical measure correlation coefficient. इससे क्या होता है, जो भी वैल्यू निकल कर के आएगी आपके रिजल्ट की, उससे हमें तीन चीज़ें पता चल सकती है. या तो हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, या नेगेटिव रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, और नो रिलेशन, नो कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है या ज़ीरो कोरिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स. नाउ लेट्स सी हाउ विल कम टू नो अबाउट इट. You can here see positive correlation is when the correlation coefficient is close to +1, there is a positive relation between two variables. जब आपने statistical measure लगाया, अपनाया correlation coefficient का, और आपकी वैल्यू +1 के आसपास आई है, इसका मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. Alright, here you can also refer to the graph in the next slide. You can here see that in positive correlation what happens, the graph is moving upwards. All right, it is moving upwards. अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीमेंट शो करेगा, वो भी इंक्रीज शो करेगा. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू that the amount of study time is related to the student's academic achievement. अब मैं इसको पॉजिटिव कोरिलेशन में कैसे ले सकती हूँ कि बच्चा जितना भी टाइम अपनी स्टडीज़ को देगा उतना बेहतर उसका एकेडमिक अचीवमेंट होगा. यस, ये इस्टेब्लिश हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन, ज़्यादा टाइम ज़्यादा बेटर अचीवमेंट. Okay, here both the variables are moving upwards and they are showing positive correlation, and your value will also approximately, if it is coming nearby +1, then it shows positive correlation. यहाँ पे आप एक और ग्राफ रेफर कर सकते हैं जिसपे आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं. हाइट और वेट का पॉजिटिव कोरिलेशन है हाइट और वेट में. कैसे? जितनी ज़्यादा हाइट होती है एक इंडिविजुअल की, टॉलर द पर्सन इज द मोर द वेट he or she has. ओके, जितना इंडिविजुअल टॉल होगा, ज़्यादातर रिसर्च स्टडीज़ में ये पाया गया है, उसका वेट भी बढ़ेगा, ज़्यादा होगा. ओके, सो इंक्रीमेंट इन वन थिंग, इंक्रीज इन वन वेरिएबल लीड्स टू द इंक्रीज इन द अदर वेरिएबल एज वेल. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वन. द सेकेंड वन इज नेगेटिव कोरिलेशन. If the value is close to -1, अगर वैल्यू -1 के आसपास है, then there will be a negative correlation. ओके, बिटवीन टू वेरिएबल्स. इसका मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिवली दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है. ऑलराइट, नाउ लेट्स रेफर टू द ग्राफ. हियर यू कैन सी दैट व्हाट विल हैपन, the increase in one variable will lead to the decrease in the other variable, and it is showing negative correlation. Okay, it will show negative correlation. जब एक वेरिएबल को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाएगा. It will show negative correlation, like the more the amount of time devoted to the study will decrease the time devoted to other playful activities. They will be negatively correlated. Okay, next example आप एक और देख सकते हैं यहाँ पे negative correlation का, कि with the time hair starts to fall. Okay, आप देख सकते हो with the time, जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना हेयर फॉल इंक्रीज होगा. रिसर्चेस ऐसा शो करती हैं. ऑलराइट, so they are negatively correlated.
टाइम बढ़ रहा है वहीं हेयर फॉल घट रहा है, हेयर फॉल बढ़ रहा है, सॉरी हेयर फॉल बढ़ रहा है विद टाइम. ऑल राइट, सो दिस इज नेगेटिवली कोरिलेटेड. नेक्स्ट इज no correlation or zero correlation. If the value is close to zero, then there is no relation between two variables. अगर आपने statistical measure apply किया जब भी इस method को अपनाया और अगर आपकी value for example minus 0.03 या plus 0.04 something like that आ रही है nearby to close, then it nearby to zero, then it means that there is no relationship between two variables. Like here also you can see it remains constant. The one variable remains unaffected with the rise or decrease in the other variable. Okay, so it shows zero correlation. आप देख सकते हो हमारी एज के साथ हमारा आई कलर चेंज हो या बड़े घटे ऐसा होता है, नहीं होता. हमारे फिंगरप्रिंट्स चेंज हो जाएं, बढ़ जाएं, घट जाए, ऐसा होगा नहीं होगा. ओके, सो इट रिमेन्स द सेम, इट हैज़ नो इफेक्ट. ओके, though the age is increasing but still there won't be any change or any effect on our eye color. Okay, so it means there are zero, there's no correlation or zero correlation. All right, so this is all about the types of correlation: positive, negative and zero. Now let's go through the advantages and disadvantages of correlational research method. So the first advantage of correlational research method is neither of the variable goes through a manipulative process. दो variables हैं but दोनों को manipulate या alter नहीं किया जाता है. The results from correlational research are more applicable. जो results आते हैं वो ज़्यादा applicable है. इनको हम wide aspects में perspective में इसको apply कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है नेचर में. रिसर्चर्स कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच रिलेशनशिप. रिसर्चर्स ये अनुमान लगा सकते हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में कितना स्ट्रांगली और किस डायरेक्शन में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं या रिलेटेड है. नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी आर मोर ईजी टू क्लासीफाई. जो रिज़ल्ट की इस स्टडी के जो रिज़ल्ट्स आते हैं इनको क्लासीफाई करना, डिस्टिंग्विश करना या एक कैटेगरी में डालना बहुत इजी है. या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ correlational research method. Next comes disadvantages of correlational research. Correlational research only uncovers relationships. कोरिलेशनल रिसर्च मेथड बस और बस रिलेशनशिप के बारे में बताता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो. उसके अलावा कुछ वो डिटरमाइन नहीं करता. व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू पॉजिटिव कोरिलेशन. हाँ, इट डज नॉट आंसर द क्वेश्चन वाई द टू वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड. ओके, सो इट ओनली एस्टैब्लिशेस, इट ओनली अनकवर्स द रिलेशनशिप्स. दैट्स इट. दैट इज़ व्हाट वी कम टू नो थ्रू दिस मेथड. It won't determine what variables have the most influence. दो वेरिएबल्स तो हैं जिसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, बट ये नहीं डिटरमाइन हो पा रहा है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि दोनों वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव है. ओके, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट नीड्स टाइम. ओके, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स माइट इंटरफेयर विद द इंफॉर्मेशन. कई बारी जब हम रिसर्च करने जाते हैं, व्हाट हैपन्स, देयर आर एक्सटर्नल वेरिएबल्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग आवर रिसर्च. देयरबाय वी कैन नॉट गेट you can say exact or precise results. Sometimes our values also get deviated on the basis of the external variables present in our environment. हो सकता है वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी थी और हो सकता है वो ज़ीरो पे पहुंच गई या चेंजेस आ गए उसमें. तो अगेन यू हैव टू गो थ्रू द रिसर्च. ओके, रिव्यू योर रिसर्च. सो इट इज़ बेसिकली that is the main problem. So these are the advantages and disadvantages of correlational research method. I hope you like this video. If yes, then please don't forget to like, share and subscribe my channel Psycho Learning World. Thank you for watching.